Good morning, students. How are you? Okay, fine. I think you all are fine, guys. Okay. So you know that we all are in a hurry regarding the completion of our course because your first term exam is very near. So you know that almost our all course is completed and parallelly you are getting the videos also. Many students are watching the videos because in the route solving lecture we are checking the notebooks as well as we can say that analyzing the students. Okay, so from this we come to know that we means all our teachers come to know that you all are doing the homework parallelly learning work. Okay, so today your chapter 7, sorry, poem 7. The name of the poem is The Dove and the Kangaroo. You know, guys, in animals also, means man, human being is a social thing, social animal, sorry. And that human beings is always living his life among the people in the society. In the same way, animals also needed cooperation. So that is why they are living with other animals, they are having their own friends. You have seen that. Most probably, cat and dog are the enemies of each other. Then also at some places, you are seeing that cat and dog are living all together. So this is the relation we can call it. And in science also you are having that term, actually I am not getting its name, but some animals are living with each other. So this is a humorous poem of a kind. This is a special kind of poem. It is different kind and such a kind is known as nonsense verse. What is the poem's type? You know, every poem has its own type. So this poem is related with nonsense verse. Who is written it? By Edward Lear. So read the poem and what is given here. Let's see. Here the name of the poem is The Dove and Kangaroo. It is written by Edward Lear. So here students, Edward is the poet that he is writing such type of poems. They are very nice and they are depends on the relationship that one person always needs the support or help of other, cooperation of other. Otherwise, his or her work is not possible. So in the same way, what the duck and kangaroo is making the discussion with each other and what they are going to say. So I will read the poem first, then we will do the explanation verse by verse. So according to this, there are total, how many verses are there? 5 verses. And in that verse, the discussion between duck and kangaroo is going on. So what the duck is requesting to kangaroo, is the request accepted by the kangaroo? So let's see through this poem. Okay, got it guys? So the first stanza of the poem is, said the duck to the kangaroo, good gracious, how you hop over the fields and the water too, as if you never would stop. My life is bored in this nasty pond, and I long to go out in the world beyond. I wish I could hop like you, said the duck to the kangaroo. Second stanza, please give me a ride on your back, said the duck to the kangaroo. I would sit quite still and say nothing but quack. The whole of the long day through the whole of the long day through, and we would go to the tea and the jelly bowling. Over the land and over the sea, please take me a ride, oh do, said the duck to the kangaroo. Stanza 3. Said the kangaroo to the duck, this requires some little reflection. Perhaps on the whole it might bring me luck. And there seems but one objection, which is, if you let me speak to so bold. Your feet are unpleasantly wet and cold and would probably give me the rheumatiz, said the kangaroo. Fourth stanza. Said the duck, as I sat on the rocks, I have thought over that completely, and I bought 4 pairs of fur socks, which fit my bare feet neatly, and to keep out the cold I have bought a clock. And every day a cigar I will smoke, allowed to follow you, my own dear true, love of a kangaroo. Fifth stanza, that is last one. Said the kangaroo, I am ready, all in a moonlight bell, but to balance me
well, dear duck, sit steady, and quite at the end of my tale, so away they went with a hop and a bound, and they hopped the whole world 3 times round. And who so happy, oh who, as the duck and the kangaroo. The poem is over. Very nice poem. Here, actually, the duck is requesting the kangaroo that, you know, kangaroo is always hopping and roaming to everywhere. But for duck, it is not possible because duck is only living in one place, that is in pond or in lake. Okay, so it is not possible for them to move to other side. So the duck is sick and tired, and that is why he is requesting. He means duck. He is requesting to the kangaroo that let him a ride on his back, means on the back of the kangaroo. So let's see. अभी हिंदी में बोलती हूँ, देखो शायद काफ़ी बच्चों को इंग्लिश समझ में ना आए. यहाँ पे बोला है कि दिस इज द पोएम रिगार्डिंग द रिलेशनशिप ऑफ डक एंड कंगारू. यू नो दिस बोथ स्पीसीज आर टोटली डिफरेंट. ये दोनों जो स्पीसीज है वो टोटली डिफरेंट है. कंगारू इज यूज टू लिव इन फॉरेस्ट, डक इज समटाइम्स लिविंग एट डोमेस्टिकेटेड प्लेसेस एज वेल एज इन फॉरेस्ट ऑल्सो. सो हियर डक जो है वो रिक्वेस्ट कर रहा है कंगारू कि मुझे तुम्हारे बैक पे बैठने के राइड लेनी है, पूरी दुनिया मुझे घूमनी है, बिकॉज मैं बोर हो गया हूँ ये पॉन्ड के अंदर घूम घूम के. आई एम सिक एंड टायर्ड, सो आई वॉन्ट अ राइड ऑन योर बैक. ऐसी रिक्वेस्ट जो है वो डक कंगारू को कर रहा है फर्स्ट स्टांजा में. तो देखते हैं, देखो. सेड द डक टू द कंगारू, गुड ग्रेशियस हाउ यू हॉप ओवर द फील्ड्स एंड द वाटर टू. डक जो है वो कंगारू के हॉपिंग की तारीफ कर रहा है कि अरे कंगारू, गुड ग्रेशियस, कितना अच्छा है नहीं कि तू एक जगह से दूसरी जगह पे होपिंग करके जाता है, फील्ड्स के ऊपर से, वाटर के ऊपर से मस्त जंप करके जाता है. हाउ नाइस ऑफ यू, कितना अच्छा है नहीं. ऐसे डक जो है वो कंगारू को बोल रहा है. एज इफ यू नेवर वुड स्टॉप, माई लाइफ इज अ बोर इन दिस नास्टी पॉन्ड एंड आई लॉन्ग टू गो आउट इन द वर्ल्ड बियॉन्ड. आई विश आई कुड हॉप लाइक यू, सेड द डक टू द कंगारू. वो बोल रहा है डक कि तेरा कितना अच्छा है नहीं, कभी रुकता ही नहीं है. तू जहाँ पे बोर हुआ चला गया आगे, वहाँ पे बोर हुआ दूसरी जगह पे. बट व्हाट अबाउट मी, मैं तो एक ही जगह पे रह रहा हूँ ये पॉन्ड के अंदर, जिसकी वजह से नास्टी पॉन्ड मीन्स व्हाट, फ्रॉम द लॉन्ग टाइम द डक इज लिविंग इन दैट पॉन्ड, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड द नास्टी पॉन्ड, मीन्स व्हाट, बोरिंग पॉन्ड. कि मैं पॉन्ड के अंदर तालाब, जिसको तुम हिंदी में बोलते हो, कि मैं मेरा पूरा लाइफ है तालाब में चला जाता है, मेरा जन्म भी यहीं पे होता है और डेथ भी यहीं पे होती है. बट आई डोंट वांट लाइक दिस, मुझे अभी वैसा नहीं रहना है. मुझे, मेरी इच्छा है कि मैं भी तेरी तरह वॉक करूँ और मैं भी, तू जहाँ जहाँ पे घूमता हूँ वहाँ वहाँ मैं भी घूमूँ. ऐसा जो डक जो है वो कंगारू से बोल रहा है. अभी सेकंड स्टैंजा में क्या है, प्लीज गिव मी अ राइड ऑन योर बैक, सेड द डक टू द कंगारू. सेकंड स्टैंजा में डक ने कंगारू को रिक्वेस्ट की कि प्लीज मुझे एक राइड देना ना, तुम्हारे बैक पे यानी पीठ पे बिठा के मुझे पूरी दुनिया घुमाना ना एक बार से, प्लीज प्लीज एक बार. ऐसे डक जो है वो कंगारू को रिक्वेस्ट कर रहा है. आई वुड सिट क्वाइट स्टिल एंड से नथिंग बट क्वैक द होल ऑफ द लॉन्ग डे थ्रू. डक बोल रहा है कि मैं चुपचाप बैठूंगा पर मेरा क्वैक 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 जो है वो चलता ही रहेगा, क्योंकि तुमने देखा होगा डक कभी भी चुप नहीं बैठते, उनका क्वैक क्वैक चलता ही रहता है. तो डक यहाँ पे बोल रहा है कि आई विल सिट क्वाइट, ओके, बट क्वैक, आई विल डू द क्वैक क्वैक ओनली थ्रू आउट द डे. मुझे वो सहन करना पड़ेगा क्योंकि मैं चुप नहीं रह सकता. पूरे दिन में चुप रहूँगा, दिस इज आइडली फिगर ऑफ स्पीच. पूरे दिन में चुप रहूँगा बट मैं क्या करूँगा, क्वैक क्वैक करूँगा. लिटोट्स, फिगर, फिर आयरनी, ऐसे फिगर ऑफ स्पीच इसमें है, मेटाफर. देन द होल डे लॉन्ग थ्रू, यानी पूरे दिन में क्वैक क्वैक करूँगा. एंड वी वुड गो टू द डी एंड द जेली बोली ओवर द लैंड एंड ओवर द सी. ये जो है डी, जेली बोली, दीज आर द नेम ऑफ द प्लेसेस. These are imaginary places, and the duck is saying that I am just doing the quack quack throughout the day, and we will go to the places like D and Joboli. ये जगह पे जेली बोली, ये जगह पे हम लोग जाएंगे, लैंड के ऊपर हम लोग जाएंगे, सी के ऊपर हम लोग जाएंगे, सब जगह जाएंगे और बहुत हमको मज़ा आएगा. देन प्लीज टेक मी अ राइड ओ डू, सेड द डक टू द कंगारू. इसलिए डक इज रिक्वेस्टिंग टू कंगारू. क्या रिक्वेस्ट कर रहा है कि प्लीज एक बार मुझे राइड दे दे, प्लीज. फिर अभी कंगारू क्या बोल रहे हैं थर्ड पैराग्राफ में, थर्ड स्टांजा में, सेड द कंगारू टू द डक, दिस रिक्वायर्स सम लिटिल रिफ्लेक्शन, परहैप्स ऑन द होल इट माइट ब्रिंग मी लव. यहाँ पे कंगारू उसको बोल रहा है कि शायद इसके लिए थोड़ा सा मेरे पास एक रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन मीन्स व्हाट, कि
क्यों नहीं रेडी, क्या प्रॉब्लम है, क्यों कंगारू ऐसे बोल रहा है कि उसको लिटिल बिट रिफ्लेक्शन की ज़रूरत है। तो उसका रीज़न भी आगे बता रहा है। देखो, कंगारू ने पहले डक को लिटरली मना किया कि इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी टू टेक अ राइड बिकॉज you are having some problems and this may create some diseases to me, or I may be a problematic situation because of you duck, that is why it is not possible for me to take a ride. फिर वो क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से कंगारू ने डक को टोटली मना कर दिया कि मैं तुझे राइड नहीं दे सकता। तो क्या प्रॉब्लम है देखते हैं। देखो, परहैप्स ऑन द होल इट माइट ब्रिंग मी लक एंड देयर सीम्स बट वन ऑब्जेक्शन, कि ओके चलो अभी तो बहुत कोशिश कर रहा है, बहुत रिक्वेस्ट कर रहा है, तो पर मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, बट एक ऑब्जेक्शन है, वो इसलिए मैं तुझे मना कर रहा हूँ। तो वो ऑब्जेक्शन क्या है वो मैं तुझे बता रहा हूँ। वो बोलता है देखो, विच इज इफ यू विल लेट मी स्पीक सो बोल्ड योर फीट आर अनप्लीजेंटली वेट एंड कोल्ड एंड वुड प्रोबेबली गिव मी द रूमेटिस सेड द कंगारू। कंगारू ने वो ऑब्जेक्शन बताया कि व्हाई द कंगारू इज नॉट रेडी टू टेक अ राइड टू द डक। वो बोल रहा है कि तेरे जो फीट होते हैं, तू तो बोलता है चलो क्वैक क्वैक तो मैं सहन कर लूँगा, पर तेरे जो फीट है वो हमेशा वेट यानी वो गीले होते हैं पानी से, जैसे मॉइस्चर होता है उसमें, इसकी वजह से तू मेरे बैक पे उसको हमेशा रखेगा तो मुझे रूमेटिस, इट इज़ अ वन टाइप ऑफ स्किन डिसीज। ओके, तो कंगारू बोल रहे हैं कि वो वेट जो तेरे फीट है वो मेरे बैक पे रहेंगे, जिसकी वजह से मुझे डिसीज़ हो सकता है। कौन सा डिसीज़ हो सकता है? रूमेटिस, वो स्किन का डिसीज़ है जो मुझे नहीं चाहिए, इसलिए मैं तुझे मना कर रहा हूँ कि तू मेरे बैक पे बैठ के राइड नहीं कर सकता। अभी फोर्थ स्टैंजा में डक क्या बोलता है देखो कंगारू को, सेड द डक एज आई सैट ऑन द रॉक्स आई हैव थॉट ओवर दैट कम्प्लीटली एंड आई बॉट 4 पेयर्स ऑफ वर्स्टेड सॉक्स विच इट फिट माई वेट फिट नीटली। डक बोल रहा है कि मैं एकदम जैसे कि पत्थर के ऊपर पत्थर की तरह बैठूंगा, बिल्कुल मूवमेंट नहीं करूँगा, तुझे बिल्कुल भी डिस्टर्बेंस नहीं होगा, बट और मैं दूसरी बात में 2 पेयर सॉक्स लेके आऊँगा, वो मेरे 4 लेग्स के अंदर मैं भर लूँगा, यानी आई वॉन्ट दैट सॉक्स, जिसकी वजह से तुझे वार्मनेस भी यानी गर्मी भी लगेगी और तुझे मेरे फीट की वजह से रूमेटिक जो है वो डिसीज़ भी नहीं होगा। एंड टू कीप आउट द कोल्ड आई हैव बॉट अ क्लॉक, और ठंडी भगाने के लिए मैं एक क्लॉक यानी जैसे कोट जैसे लेके आऊँगा, कवर जैकेट जैसा। एंड एवरी डे अ सिगार आई विल स्मोक, और मैं एक सिगार स्मोक करूँगा। क्यों? ऑल टू फॉलो माई ओन डियर टू लव ऑफ कंगारू, क्योंकि तुझे ठंडी ना लगे, टू कीप यू आउट ऑफ कोल्ड, दैट इज़ वाई आई वुड बॉट द पेयर ऑफ सॉक्स एज वेल एज अ क्लॉक एंड आई विल स्मोक अ सिगार। वाई? बिकॉज माई डियर फ्रेंड कंगारू यू हैव टू कीप आउट फ्रॉम द कोल्ड, कि तुझे ठंडी नहीं लगे, क्योंकि तू मेरा बेस्ट फ्रेंड है, क्योंकि वो दोनों बेस्ट फ्रेंड होते हैं, कंगारू भी एंड डक भी। इसीलिए डक उसको रिक्वेस्ट कर रहा है। कंगारू ने बोला कि ओके कोई बात नहीं, बट मैं तुझे राइड नहीं करा सकता। उसका ऑब्जेक्शन भी उसने बोला कि उसके फीट जो है वो मॉइस्चर वाले होते हैं, जिसकी वजह से उसको रूमेटिस नाम का डिसीज़ हो सकता है, तो मेरे लिए वो पॉसिबल नहीं है। तो अभी ये बात जो है वो कंगारू ने उसके सामने बताई। डक ने बोला ओके आई विल सॉल्व योर प्रॉब्लम, कि मैं तेरा प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा, क्योंकि यू आर माई लवेस्ट एंड बेस्ट फ्रेंड, तेरे लिए मैं ये सब करूंगा जिसकी वजह से तुझे ठंडी नहीं लगेगी। लास्ट स्टैंजा में देखो, सेड द कंगारू आई एम रेडी ऑल इन द मूनलाइट पेल। कंगारू ने बोला कि चलो आई एम रेडी टू टेक यू अ राइड, कि मैं तुझे एक राइड दूंगा, मैं रेडी हूँ। कहाँ? मूनलाइट यानी शाम का जो समय होता है, वहाँ पे मूनलाइट ऐसे फेंट होता है, तब कंगारू उसको बोलता है कि हम लोग घूमेंगे। बट टू बैलेंस मी वेल डियर डक सिट स्टेडी। कंगारू तुमको पता है हमेशा होपिंग करके ही चलता है, तो कंगारू अपने फ्रेंड डक को बोल रहा है कि मेरी बॉडी का बैलेंस हो, इसलिए तू पक्का पकड़ के बैठना है, मूवमेंट नहीं करना। स्टेडी मीन्स कीप क्वाइट, कीप स्टिल, ओके। तो इस तरह से तू बैठना जिसकी वजह से मूवमेंट ना हो। एंड क्वाइट एट द एंड ऑफ माई टेल, और मेरे टेल के लास्ट एंड पे बैठना। यहाँ पे पिक्चर भी दिया हुआ है देखो कि कंगारू जो है वो एंड में लास्ट में बैठा हुआ है, कि तू जो है मेरे टेल के लास्ट में बैठना, क्योंकि मैं होपिंग करूँगा तो तुझे प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि होपिंग करने से मूवमेंट होती है और डक को भी पकड़ के रखना पड़ेगा। तो फॉर बोथ देयर इज़ अ प्रॉब्लम, दोनों के लिए प्रॉब्लम था। पर डक की विश थी कि उसको पूरी दुनिया घूमनी है, वो पॉन्ड के अंदर वो रह के बोर हो गए हैं, इसीलिए वो कंगारू को बोलता है कि मुझे
राइट चाहिए। कंगारू जो है वो फाइनली ही वॉज रेडी, वो रेडी हो जाता है, बट बाद में वो बोलता है कि तुझे मेरे टेल के पीछे की साइड में बैठना पड़ेगा। सो अवे दे वेंट विथ हॉप एंड बाउंड एंड दे होप्ड द होल वर्ल्ड 3 टाइम्स अराउंड। फिर वो चल पड़े हॉपिंग करते करते, पूरा उन्होंने सब जो है वो देवर रोमिंग एंड देवर एंजॉइंग अ लॉट देयर जर्नी। घूमे यहाँ वहाँ घूमे हॉपिंग करके पूरी दुनिया को उन्होंने 3 बार राउंड लगाया। दे होप्ड 3 टाइम्स द होल वर्ल्ड एंड हु सो हैप्पी ओ हु एज द डक एंड द कंगारू। फिर दोनों खुश थे क्योंकि यहाँ पे डक की जो विश थी, जो डिज़ायर थी, वो कंगारू ने कंप्लीट की, बराबर। और कंगारू को भी कंपनी मिल गई डक की, क्योंकि देखो मैंने तुमको इसीलिए ये पोएम के स्टार्टिंग में ही बोला कि ह्यूमन बीइंग इज अ सोशल एनिमल इन द सेम वे एनिमल्स आर ऑल्सो सोशल। एग्जाम्पल ले लो, अगर तुम लोगों के घर में डॉग होगा, डॉगी, तुम लोग अगर सब घर के बाहर चले जाते हो और डॉग को घर के अंदर अकेला रखते हो तो वो बोर होता है। और कुछ लोग होते हैं वो जॉब पे जाते हैं, तो डॉगी को उनका टाइम पता होता है कि मेरे जो ओनर है वो सुबह जाता है, शाम को आता है, तो जैसे ही शाम होती है डॉग विंडो में उसका वेट करता है। यानी कि ये एनिमल की एक हैबिट होती है। सेम में यहाँ पे बोला हुआ है कि डक की डिज़ायर थी, विश थी कि उसको पूरी दुनिया घूमनी है, क्योंकि वो पॉन्ड में रह के बोर हो चुका है। कंगारू ने उसकी विश पूरी की और पैरेलली कंगारू को भी एक अच्छा फ्रेंड मिला। बस यही हमको देखना है कि हम लोगों को अगर लाइफ में ऐसा कुछ कोऑपरेशन, ऐसा हमारा फ्रेंड हो तो हमारी सारी विश पूरी हो सकती है, इजंट इट गाइस। तो बस यही यहाँ पे पोएम तुम्हारी कंप्लीट है। सो तुमको पता चला होगा कि व्हाट इज़ द मोरल ऑफ द पोएम। तो मोरल क्या है? मोरल ये है कि हम लोग ये वर्ल्ड के अंदर ऑन दिस अर्थ हम लोग अकेले नहीं रह सकते। हम लोगों को कोई फ्रेंड चाहिए जिसके साथ हम लोग हमारी खुशियाँ, हमारे दुख सब शेयर कर सकते हैं। सबका सब मन में रखना पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग कभी कभी हमारे बेस्ट फ्रेंड को जो बात बताते हैं वो पेरेंट्स को भी नहीं बताते। तो इसीलिए हमें एक बेस्ट फ्रेंड होना चाहिए। इसीलिए ये पोएम का मोरल वही हुआ कि कंगारू एंड डक आर द बेस्ट फ्रेंड एंड दैट इज वाई दे लिव्ड टुगेदर, दे वेंट टुगेदर, दे एंजॉयड टुगेदर। द विश ऑफ द डक इज फुलफिल्ड बाय कंगारू। कंगारू ऑल्सो गॉट अ गुड फ्रेंड एंड अ कंपनी, इजंट इट। तो ये उसका मोरल हुआ। यही हमें सीखना है कि हमें भी लाइफ में ऐसे अकेला नहीं रहना है। हमेशा हमारे फ्रेंड्स हमारे साथ में होने चाहिए, बराबर के नहीं। जैसे तुमको पता है आजकल व्हाट्सएप और फेसबुक का ज़माना है। फेसबुक के हमारे 1000 सब्सक्राइबर्स होंगे, क्या बोलते हैं उसको, फ्रेंड्स होंगे, व्हाट्सएप में भी होंगे, बट रियल में कौन है? तो ऐसा एक रियल में हमारा फ्रेंड होना चाहिए जिसके साथ हम लोग हमारे पर्सनल मैटर्स जो है वो शेयर कर सकते हैं। मानते हो कि नहीं इस बात को? यस, तुम लोग भी मानते हो कि यस मैम, सच में हमारा एक फ्रेंड ऐसा होना चाहिए जिसके साथ हम लोग घूमने जाए, जिसके साथ हम लोग खेले, ओके नहीं? अभी देखो बेटा, आई होप तुमको पोएम समझ में आई होगी, बहुत अच्छी पोएम है, पर इसके क्वेश्चन आंसर्स टेक्स्ट बुक में नहीं दिए। तो काफ़ी बच्चों को प्रॉब्लम आएगा कि मैम कहाँ से लिखे, क्वेश्चन आंसर से नहीं दिए हुए हैं। डाइजेस्ट के अंदर इसके रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स होंगे जो तुम लोगों को वहाँ से देख के लिखना है। क्लियर गाइज? यानी तुम्हारा हर बार वही डाउट होता है कि मैम कहाँ से लिखे, कौन सा लिखे। बस मैंने तुमको बोल दिया कि तुम लोगों को यहाँ पे पोएम के क्वेश्चन आंसर्स दिए हुए ही नहीं, तो ऐसा नहीं समझना कि अरे क्वेश्चन आंसर्स नहीं दिए तो अरे वाह मज़े पड़ गए। नो बेटा, तुम लोगों को लिखना है, डाइजेस्ट में से देखो, अगर होगा नहीं मिलता है तो डाउट सॉल्विंग लेक्चर में मुझसे पूछ लेना, ओके। तो यहाँ पे हमारा ये जो पोएम था जो मैंने तुम लोगों को बताया, आई होप तुम लोगों को ये समझ में आया होगा कि क्या इसके अंदर दिया हुआ है। इसके साथ बेटा तुम लोगों का जो कोर्स है, जैसे एक सेकेंड ना मैं देख लूँ, फिर तुम लोगों को मैं बता ही देती हूँ, यानी तुम्हें पता रहेगा कि ये पोएम के साथ हमारा जो कोर्स है वो कंप्लीट हो जाता है। तुम्हारा जो अक्टूबर तक का कोर्स है वो कंप्लीट होता है। तुम्हारा कुछ टॉपिक है जिसमें ग्रामर है, जैसे मैंने बच्चों को पूछा था एक बार, मैंने ही तुम लोगों को पूछा था कि बेटा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस में वो एज सुन एज, नो सूनर, रिमूव टू, यूज टू ईजी है बट करवाना है, तो तुम लोगों ने बोला कि मैम करवाना पड़ेगा। तो मैंने सोचा चलो लास्ट में लेते हैं। तो तुम्हारा जो कोर्स है वो 21 अक्टूबर तक तो कंप्लीट ही हो जाएगा। यानी तुम लोगों की अगर फर्स्ट में एग्ज़ाम नवंबर में आती भी है तो तुम लोगों को 10 डेज मिलते हैं रिविज़न करने। तो तुम लोगों को ये सब कुछ जैसे जैसे मेरे लेक्चर्स आ रहे हैं तुमको बहुत ही ध्यान से देखना है। पैरेलली तुम लोगों को उसके क्वेश्चन आंसर्स भी लिखने हैं। इन एवरी लेक्चर आई एम एम्फसाइजिंग ओवर दिस टॉपिक कि यू हैव टू राइट ऑल द क्वेश्चन आंसर्स पैरेलली।
बिकॉज यू विल नॉट गेट द बर्डन देन, बर्डन नहीं होगा, आराम से तुम लोग लर्न कर पाओगे, लिख पाओगे. ओके, तो विथ दिस होप आई एम एंडिंग माई लेक्चर. फ्रॉम नेक्स्ट लेक्चर ऑनवर्ड वी विल मूव टूवर्ड्स द ग्रामर पार्ट. अप टू टेक्सचुअल, व्हाट इज योर टेक्सचुअल इज देयर, इट इज ओवर हियर. जो भी ग्रामर पार्ट बाकी है, डायरी है, नोटिस है, ईमेल है, काफ़ी बच्चों को उसमें प्रॉब्लम है, तो मैंने सोचा चलो उसको लास्ट में ले लेती हूँ. तो लास्ट में उसको मैं लूँगी, इसलिए डोंट वरी. ओके, डोंट बी इन टेंशन. तो अपने उसको कंप्लीट कर देंगे. ओके गाइज, बाय.